cozy living room. Grandma is sitting on her favorite sofa and trying to read the newspaper. Her glasses are on, but she is struggling to read. Her grandson, Devraj, enters the room holding a chessboard. What happened, Grandma? Oh, Devraj, my eyes are just a bit tired. I'm trying to read the newspaper, Oh, but it's all blurry. Oh, Devraj, oh, Grandma, you are trying to read all the small print. I will read it for you. Don't worry. okay, but you are too small. You are just in nursery and 4 years old. How can you read this newspaper? I can't believe it. I can read, Grandma. I can read. You are too small. You are just in. Do you know, in our school, alpha pedagogy was introduced by Dr. Sunita Gandhi ma'am, Okay. and our class teacher, Ma'am Shivangi Pandey, follows it. She motivates and encourages us to read and speak in English, so we have clear communication and pronunciation Okay. and our thoughts and emotions in English. Oh, wow. That's great, Devraj, to know all that. I love this education pattern. Oh, PM, it's warm welcome in US home stocks with Biden. Wilmington, Delaware Prime Minister Narendra Modi met US President Joe Biden at his personal home in Wilmington. Arms Atishi takes oath as Delhi's chief minister. Now some sports news, Grandma. okay. Why coaches in international cricket can have greater influence on players? Now, Path Gill put India on verge of victory. But both score hundreds and 167 runs for the fourth wicket. India set 515 run target before Ashwin claims free scalps. Everyone, my name is Anuradha Singh and I am mother of Devraj Singh. He studies in Nursery B, CMS Gomti Nagar Extension Branch. Everyone, through this video, we have given our feedback on alpha pedagogy because we thought it is more important to show the things practically rather than just studying. And I am delighted to see my child's overall performance, which is being nurtured at school. And he expressed his thoughts, his views, his emotions in English, and he understands the English conversation and replies very easily. And I am delighted to see पुरानी पद्धति प्लस में नई पद्धति. Yes, ma'am. आप लोगों ने अल्फा पेडागोजी के थ्रू जो पुरानी पद्धति थी, जो A for apple, B for ball, C for cat, पुरानी पद्धति इससे बच्चा इतना नहीं सीखता था जितना बच्चा इस पैटर्न से सीख रहा है विजुअलाइजेशन के थ्रू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे टू टीच, राइट. तो ये पद्धति से हमारा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे से सीख रहा है. इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन. तो मैं आपको मैम बताऊंगी कि मेरा बच्चा रीडिंग में क्या कर रहा है, राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है एंड स्पोकन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है बाय अल्फा पेडागोजी के थ्रू, राइट. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, आपने टीना टोटो जो 2 कैरेक्टर्स दिए हैं इसमें, वी ऑल एंजॉय वेरी मच एंड उससे हमारे बच्चे और हमारे बीच में भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जस्ट फ्रेंडली. और आप इस पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग पैटर्न में. मैम आपको मैं फीडबैक देना चाहूंगी, इतना इंप्रूवमेंट आया है बच्चे के उसमें कि वो आज ओनली 4 इयर्स का चाइल्ड मेरा है देवराज सिंह, वो नर्सरी में है और वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड कर सकता है. इट्स रियली वेरी वेरी मैजिकल. मुझे बड़ी खुशी है कि वो इतना इजी वे में इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड कर रहा है विथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन. एंड एक और चीज धीरे धीरे जैसे मैं बताती हूँ, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ही रीड्स द मेन्यू कार्ड एंड फिर वो डिमांड करता है कि हाँ मम्मी ये खाना है, ये भी है यहाँ अवेलेबल है, ये सारी चीजें. साउथ इंडियन डिश खाते हैं, ये है इसमें अवेलेबल. तो बड़ी खुशी होती है कि बच्चा अपने आप रीड करके हमें बता रहा है, वो भी इतना छोटा है. इवन रेस्टोरेंट में सब लोग देखने में लगते हैं कि वाओ इतना छोटा बच्चा रीड कर रहा है. दूसरी चीज, जब हम मार्केट में जाते हैं, शॉप्स पे जो भी कुछ लिखा होता है, हम उसे कहते हैं कि बेटा यू रीड इट,
तो वो सब रीड करके हमें बताता है, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरा और एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है, वो गूगल पे सर्च करता है, उसमें वो हमें सुनीता विलियम्स जी के सारे अपडेट्स देता है कि उसमें क्या क्या, मतलब कि अब वो कब आ रही हैं, नासा में कितने दिन तक वो रुकी रहेंगी, क्यों उन्हें वहां पे परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो वो सारे अपडेट्स हमें सर्च करके उनके देता रहता है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बच्चा अपना नॉलेज जीके भी उसके थ्रू इंप्रूव कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो रीड करके सब समझ भी लेता है अब, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ओनली 4 years चाइल्ड। तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, राइटिंग स्किल में उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया। जैसे कि आपने अल्फा के थ्रू ये चीज बताई है कि हमें विजुअलाइजेशन करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कि उसमें एप्पल है, फर्स्ट साउंड मतलब ए बना है, एप्पल बना है, स्पेलिंग लिखा है, तो बच्चा जब पिक्चर देखता है, ए देखता है, फर्स्ट साउंड उसे बता दिया ए, एंड उसमें जो एप्पल लिखा है वो बच्चे की जब वो 1 to 5 years की एज में होता है तो उसके माइंड में वो छप जाती है चीजें। तो इसके कारण ही मैम उसको जो है अब वो 6 to 7 लेटर्स भी राइट डाउन कर सकता है। आप उसे कोई भी स्पेलिंग कहिए कि इसकी लिख के दिखाओ, या कोई भी वर्ड कहिए, वो लिख के दिखाएगा। दूसरी चीज मैम क्या है इम्प्रूवमेंट, कि जो बच्चे के उसमें नहीं आए हैं, उसके एनवायरनमेंट में वो यूज टू नहीं है, तो उन वर्ड्स को वो फोनिक के थ्रू अरेंज करने की कोशिश करता है, फोनिक लगा के अपने आप बनाने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट इज दिस मैम, आपका मैम हमने ग्लोबल लर्निंग लैब देखा था, उसमें जो आपने बताया था कि बच्चों का जो असेसमेंट्स होते हैं वो यदि बच्चा खुद ही अपने पार्टनर के लिए क्रिएट करे एंड फिर उसे सॉल्व करे, इससे बच्चा क्रिएटिव भी बनेगा, बहुत ज्यादा उसे नॉलेज भी आएगी और बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं आपको मैम एक एग्जांपल देती हूँ, ये उसके बाद मैंने नहीं कराया, बट उसने ये मुझे अपने आप मेरा टेस्ट लिया था, तो उसने मुझे कंट्रीज के नेम दिए। जस्ट लुक एट हियर मैम, एंड दिस इज द क्वेश्चन पेपर। तो उसने कंट्रीज के नेम दे रखे हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स करके हमें दे रखा है, तो ये है पूरा क्वेश्चन पेपर, तो दे रखे हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्रिएटिव बन रहा है, और ये सब चीजें जो आपने कही वो बच्चा दिख रहा है मैम हमें कि उसने ये चीज कर ली है। और फिर थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं मैम, स्पोकन इंग्लिश। उसकी स्पीच में वेरी क्लैरिटी, उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत क्लैरिटी है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो अपने आप से बोलता है, आंसर करता है, और इवन क्लास में क्वेश्चंस मैम से कर लेता है इन इंग्लिश। तो यही स्पोकन इंग्लिश में हमें बच्चे का चाहिए, और वो सिर्फ 4 years का है और नर्सरी ग्रेड में है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और थैंक्स टू मिस शिवांगी, उसकी स्पीच में वेरी पांडे मैम, जो कि रियली बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, वो बच्चों के स्पोकन इंग्लिश पे पूरा फोकस करती हैं। और थैंक यू सो मच मैम, आपने पांडे मैम अल्फा पेडागोजी को लेकर आए और हमारे बच्चों को बहुत बहुत अच्छी चीज जो कि बच्चा बहुत एंजॉय करके पढ़ रहा है। आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चों के लिए, इतने सारे बच्चों के लिए, तो हम एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए तो कर ही सकते हैं, इसलिए हम उसके लिए टीना बनते हैं और वो हमारा टोटो। सो थैंक यू सो मच मैम। इसलिए मैंने बहुत जरूरी समझा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आपको ये जरूर बताना चाहती थी कि आपकी मेहनत कहाँ तक साकार हो रही है। तो मैम मैं जरूर आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि एक बार आप देवराज को कहीं पर भी लेकर जाइए, वो आपको कहीं पर भी, आप इंस्टेंटली उससे कहीं पर भी रीडिंग का कहेंगे, वो रीड करके आपको दिखा सकता है। इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो, ये बहुत ही रियलिटी है कि आप ऑन द स्पॉट क्लास में पहुंचिए, उससे रीड करवाइए, ही विल रीड, और ये सब कुछ अल्फा का रिजल्ट है। सो थैंक यू सो मच मैम। Wait! I am Toto and she is my best friend Tina. So please subscribe our channel and like.